باغات کے شہر میں کالی گھٹاؤں کا راج ہے۔ مختلف مقامات پر وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ جیل روڈ، کینال روڈ، مال روڈ سمیت دیگر علاقوں میں بارش جاری ہے اور دن بھر وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گی سمرا فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی سمرا، بتائیے گا کہ کیسا موسم آپ باہر دیکھ رہی ہیں؟ ابھی بھی بارش ہو رہی ہے؟ جی بالکل، اگر بات کر لیجیے تو ابھی بھی شہر میں بادل برسنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کبھی ہلکی بارش ہوتی ہے تو کبھی موسلادھار بارش کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مختلف علاقوں میں رم جھم اور ہلکی بارش ابھی بھی جاری ہے۔ اگر بات کر لیجیے تو ٹاؤن شپ، قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ، کچا جیل روڈ پر بادل برسنے کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ اسی کے ساتھ ساتھ مال روڈ، جیل روڈ، کینال روڈ، فیروز پور روڈ، کلمہ چوک، قذافی، برکت مارکیٹ اور اسی کے ساتھ ساتھ شہر کے ملحقہ علاقوں میں بھی بادل برس رہے ہیں اور جل تھل ایک کر رہے ہیں۔ بارش سے شہر کا موسم خوشگوار اور سہانا ہو چکا ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں جس سے شہری بھی خوش ہیں اور ہر کوئی جو ہے وہ اپنے اپنے طریقے سے موسم سے لطف اندوز ہوتا بھی دکھائی دے رہا ہے۔ بارش اور بادلوں سے درجہ حرارت بھی کم ہو چکا ہے۔ اس وقت شہر کا موجودہ درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24 ڈگری تک جائے گا اور کم سے کم 16 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کے امکانات ہیں۔ ہوا میں نمی کا تناسب 40% تک ہے اور 13 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، جو کہ موسم کو مزید خوبصورت بنانے کا باعث بن رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آج دن بھر بارش کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا۔ کبھی ہلکی بارش ہوگی، کبھی بارش کا سلسلہ تیز ہو جائے گا، آندھی اور جھکڑ چلنے کے امکانات بھی موجود ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایسے میں نشیبی علاقے بھی زیر آب آ سکتے ہیں، تو شہریوں کو بھی احتیاط کرنے کا کہا جا رہا ہے اور تمام متعلقہ اداروں کو بھی الرٹ رہنے کا کہہ دیا گیا ہے۔ بارشوں کا موجودہ اسپیل 9 اپریل تک شہر لاہور میں جاری رہے گا اور اس دوران شہر میں وقفے سے بارش کے امکانات موجود ہیں۔ آئندہ چند روز تک شہر کا مطلع بھی جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ سورج اور بادلوں کے مابین آنکھ مچولی بھی دیکھنے میں نظر آئے گی اور شہر کا موسم ٹھنڈی ہواؤں سے، بادلوں کی موجودگی سے اسی طرح سے خوشگوار اور سہانا محسوس کیا جائے گا۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ سمرا تھی، تفصیلاً موسم کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہی تھی۔ 5 مرلے کے گھر پر سنگل فیز میٹر لگانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ نیو کنیکشن کے قوانین میں ترمیم کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ 2 مرلہ ڈبل سٹوری گھر پر کم از کم 3 کلو واٹ لوڈ پر سنگل فیز میٹر لگایا جائے گا۔ 2 مرلہ تک سنگل سٹوری گھر کے لیے 1.5 کلو واٹ لوڈ پر کنیکشن دیا جائے گا۔ 2 مرلہ سے زائد اراضی ہونے کی صورت میں 3 فیز میٹر کا ڈیمانڈ نوٹس دیا جائے گا۔ لیسکو سمیت تمام کمپنیز میں نیو کنیکشن کے قوانین پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل گھریلو صارفین کو 1 یا 2 کلو واٹ لوڈ پر سنگل فیز میٹر لگانے کی اجازت تھی۔ ترامیم کی منظوری سے صارفین کو اب سنگل کی بجائے 3 فیز میٹرز لگوانا ہوں گے۔ 3 فیز میٹرز لگوانے سے صارفین پروٹیکٹڈ کیٹیگری کے اہل نہیں ہوں گے۔ پروٹیکٹڈ کیٹیگری کی اہلیت ختم ہونے پر صارفین کو ٹیرف کے مطابق بل دینا ہوگا۔ اور پنجاب میں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کے بڑے منصوبے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ پنجاب میں 15 لاکھ نئے صارفین کو براڈ بینڈ سے منسلک کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ ذرائع PITV کا بتانا ہے کہ صوبے میں براڈ بینڈ کنیکشنز کی تعداد دگنا کی جائے گی۔ مزید تفصیلات جانیں گے علی رامے سے، جی آگاہ کیجیے گا۔ عالمی بینک کی مدد سے پنجاب حکومت یہ پروجیکٹ جو ہے اب شروع کرنے جا رہی ہے صوبہ بھر میں، جس میں سب سے پہلے تو اربن سٹیز کے اندر جو انٹرنیٹ سپیڈ ہے اس کو مزید بہتر کیا جائے گا اور براڈ بینڈ جو نئی کمپنیز ہیں ان کو ہائر کرنے کے بعد یہ سسٹم لاہور شہر اور بڑے شہروں کے اندر جو ہے وہ اس کا نافذ کیا جائے گا۔ اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو انٹرنیٹ ہے اس کی سپیڈ کو مزید بہتر کرنا، تاکہ جو ڈیجیٹل سروسز ہیں پنجاب کے اندر جو دی جا رہی ہیں اس کو مزید لوگوں تک پھیلانا ہے، تاکہ وہ لوگ سروسز جو ہے وہ استعمال کریں۔ اب اس کے ساتھ ہی جو بزنس مراکز ہیں، سرکاری سکولز ہیں، پرائیویٹ سکولز ہیں، نجی ادارے، پرائیویٹ سرکاری ادارے، ان اداروں کے اندر بھی براڈ بینڈ لا کے اس کا انٹرنیٹ جو ہے وہ مزید بہتر کرنا، ایک کلاؤڈ سسٹم بھی ہوگا اور وہ حکومت جو ہے وہ عالمی بینک کی مدد سے یہ پروگرام جو ہے وہ شروع کرنے جا رہی ہے۔ اس کو کنیکٹڈ پنجاب کا نام بھی دیا جا رہا ہے اور اس پروگرام کا مقصد بھی ہے پنجاب کو مزید جو ہے وہ ڈیجیٹلائز کیا جائے اور ڈیجیٹل ہونے سے جتنی بھی پنجاب کی جو سروسز ہیں وہ عام شہری تک میسر ہو سکیں گی۔ اب کیونکہ انٹرنیٹ کی سپیڈ کے اوپر بہت زیادہ ایشو ہے، تو لہٰذا انٹرنیٹ سپیڈ کو حکومت بہتر کرنا چاہ رہی ہے اور اس کے لیے جو براڈ بینڈ کمپنیز ہیں ان کے لیے جو لائسنس کا اجرا کیا جاتا ہے اس کا دورانیہ بھی کم کیا جا رہا ہے کہ کس دن کے اندر ان کو لائسنس میسر ہو اور وہ فوری پنجاب کے اندر کام کرنا جو ہے وہ شروع کر دیں۔ اب حکومت عالمی بینک کے ساتھ یہ لون نیگوشیٹ کرے گی، جس کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو باقاعدہ بریفنگ جو ہے وہ دی جا رہی ہے اور بریفنگ کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب جب منظوری دیں گی تو عالمی بینک سے یہ رابطہ کیا جائے گا۔ 2026 سے 31 تک یہ ایک پروجیکٹ ہے جس پہ باقاعدہ ورکنگ مکمل کر لی گئی ہے اور 2031 تک اس کو مکمل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی رامے۔
और पंजाब में सोने के ज़खायर की दरियाफ्त पर बड़ी पेशरफ्त हुई है। हुकूमत ने नेस्पाक से फाइनल रिपोर्ट 30 अप्रैल तक तलब कर ली है। अटक, मियां वाली समेत मुख्तलिफ मुकामात पर मौजूद सोने की कीमत कई 100 अरब हो सकती है। रवा माह नेस्पाक की फाइनल रिपोर्ट के बाद बैनुल अक़वामी ऑक्शन होगी। इस हवाले से बात करेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी आगाह कीजिएगा। कुछ अर्सा कबल सोने के ज़खायर दरियाफ्त होने का इंकशाफ हुआ था और ये इंकशाफ उस वक्त वज़ीर मादनियात सरदार शेर अली गुरचानी ने किया था और इस हवाले से जो है वो पंजाब हुकूमत ने जब इस पर वर्किंग शुरू की तो पंजाब हुकूमत ने ये टास्क फिजिबिलिटी स्टडी का जो है वो नेस्पाक को तफवीज़ किया था। अब पंजाब हुकूमत ने नेस्पाक से 30 अप्रैल तक ये रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है और हर सूरत में फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल करके ये रिपोर्ट जमा कराने के अहकामात जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि अटक, मियां वाली और दीगर अजला में सोने के ज़खायर के हवाले से जो रिपोर्टिंग हुई थी उस पर अब फर्दर फिजिबिलिटी स्टडी में ये इसका तयन किया जाएगा कि कितनी नौयत का और वो कितनी मालियत का ये सोने के जो ज़खायर हैं वो मौजूद हैं। ताहम उस वक्त ये बताया गया था कि अरबों डॉलर का ये गोल्ड है जो कि दरियाफ्त हुआ है अटक और मियां वाली की कुछ साइट्स में। ताहम इस पर फर्दर जो अब प्रोसीडिंग है, जो ही रिपोर्ट वापस आएगी तो उस पर फिर इसकी ऑक्शन के हवाले से पंजाब हुकूमत फैसला करेगी कि ऑक्शन के लिए क्या करना है। जिस तरह से बताया ये जा रहा है कि गोल्ड की कीमतें जिस तरह से अप हुई हैं उसी तनाजुर में देखा जाए तो करोड़ों डॉलर का ये गोल्ड है जो कि मौजूद है अटक और दीगर अजला में। जी राव दिलशाद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को सब्सिडी के हवाले से मैकेनिज्म फाइनल नहीं हो सका है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का हुकूमती तरीक़ाकार के तहत सब्सिडी लेने से इनकार। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से डीजल सस्ता करने की अपील कर दी है। इस हवाले से अपडेट करेंगे ताहिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। जी ताहिर, बताइएगा। ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल और सब्सिडी के मैकेनिज्म पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और वजीर ट्रांसपोर्ट के माबैन, हुकूमत के माबैन, हुकाम के माबैन कोई पेशरफ नहीं हो सकी और जो हुकूमती मैकेनिज्म के तहत जो सब्सिडी है उसको लेने से जो ट्रांसपोर्टर्स, जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स है उन्होंने इनकार कर दिया। गुज़श्ता रोज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर वजीर ट्रांसपोर्ट की और दीगर हुकाम की, जिनमें मोटरवे पुलिस, हाईवे पुलिस और दीगर ट्रैफिक पुलिस शामिल थे, जिले इंतजामिया के हुकाम भी शामिल थे, ये इजलास हुआ और उसमें ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल सुने गए। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स के साथ बड़ी हद तक पेशरफ्त हो गई थी हुकाम की, लेकिन जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन है उनके साथ राय के मुताबिक किसी किस्म की पेशरफ्त ना हो सकी और कोई जो मैकेनिज्म है वो भी फाइनल ना हो सका। ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना था कि जो हुकूमती मैकेनिज्म है उसके तहत सब्सिडी उनके लिए मुनासिब नहीं है और वो जो उनका यही मुतालबा है कि डीजल सस्ता किया जाए, क्योंकि गुड्स ट्रांसपोर्टर डीजल पे ही चलती है और डीजल महंगा होने की वजह से उनके लिए अब काम जारी रखना या इसमें से कोई मुनासिब मुनाफा रखना भी उनके लिए अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया और वो मुसलसल खसारे नुकसान में है और ऊपर से टोल टैक्स और जो दीगर जुर्माने हैं वो भी उनके जो मुतालबात है उनमें शामिल थे। जिस पर जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट है राय के मुताबिक उन्होंने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के जो मुतालबात है उनके साथ बड़ी हद तक उनके साथ एग्री किया और उनके जो मुतालबात है उनके और जो मैकेनिज्म है उस वाले से वज़ीर आला तक उनके मुतालबात और उस वाले से उनके सामने गुज़ारिशात कराई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर। बहरीन गल्फ एयरलाइन का भी दमाम के रास्ते लाहौर के लिए फ्लाइट ऑपरेशन चलाने का फैसला। गल्फ एयरलाइन बहरीन से दमाम के रास्ते लाहौर के लिए परवाज़ों का शेड्यूल मुरतब कर लिया है। 7 से 30 अप्रैल तक दमाम के रास्ते परवाज़ों का शेड्यूल मुरतब हुआ है। सईद अहमद सईद से डिटेल्स जानेंगे। जी सईद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मशरकी वस्ताई ममालिक का सिक्योरिटी के पेश नज़र जो बराह रास्त फ़्लाइटों का ऑपरेशन मुअत्तल किया गया था, अब उनकी जानिब से बरास्ता दमाम परवाज़ों के आगाज़ के वास्ते दिलचस्पी है वो सामने आ रही है। कुवैत एयरवेज़ के बाद अब बहरीन की जो गल्फ़ एयर्स है उसने भी लाहौर से बरास्ता दमाम बहरीन के लिए परवाज़ों के आगाज़ का फ़ैसला है वो कर लिया है और इस वजह से शेड्यूल जो है वो 7 अप्रैल से 30 अप्रैल के मबैन मुरतब किया गया है। मुसाफिरों को जो है लाहौर से दमाम एयरपोर्ट है वो लैंड करवाया जाएगा और दमाम एयरपोर्ट से बरास्ता बसेस मुसाफिरों को जो है वो बहरीन मुंतकिल है वो किया जाएगा। इस वजह से तमाम तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं और बहरीन जो गवर्नमेंट है और एविएशन जो ज़राए है वो ये कहते हैं कि बहरीन जो तैयारे हैं वो लाहौर से उड़ान भरकर जो दमाम है वो लैंड करेंगे और दमाम से बसों के ज़रिए मुसाफिरों को जो है वो बहरीन अब मुंतकिल किया जाएगा। जी।
बहुत शुक्रिया सईद, हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। शहर में होने वाली बारिश से लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासर होने लगा है। कंपनी के 100 से ज़्यादा फीडर्स ट्रिपिंग से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। सिस्टम में फनी तकनीकी खराबियां पैदा होने की वजह से बिजली की सप्लाई बंद हुई है। शहर के बाज़ इलाकों में ट्रांसफार्मर्स में खराबियां पैदा होने से बिजली बंद है। वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश की वजह से इनफरादी शिकायत में भी इजाफा हो गया है। बारिश की वजह से लेस्को के लाइन स्टाफ को मुरम्मती काम करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। तो शहर में होने वाली बारिश से लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासर हो गया। कंपनी के 100 से ज़ायद फीडर पर ट्रिपिंग से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। शाहिद सिप्रा हमारे साथ हैं, मजीद आगाह करेंगे। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, क्योंकि शहर में वक्फे वक्फे से कहीं मूसलाधार बारिश हो रही है और कहीं हल्की बारिश है, जिसकी वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का तरसीली निज़ाम मुतासर हो रहा है और कंपनी के 100 से ज़ायद फीडर्स पर ट्रिपिंग के वाक़यात रूनुमा होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। सबसे ज़्यादा जो इलाके मुतासर हुए हैं वो गुलशन रावी और शादरा और अतराफ के इलाके हैं। इसी तरह बाज़ ऐसे इलाके हैं जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डैमेज होने के वाक़यात रूनुमा हुए हैं और ट्रांसफार्मर जलने की वजह से बिजली की सप्लाई मुअत्तल हुई है। लेकिन इस बारिश की वजह से जो इनफरादी कंप्लेंट्स हैं उनमें खातिर खा इजाफा हुआ है और सार्फिन की जानिब से शिकायत का अंदराज करवाया जा रहा है। लेकिन बारिश की वजह से जो लाइन स्टाफ है उनको बरकी लाइनों पर काम करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जिन इलाकों में बारिश का सिलसिला थम जाता है वहाँ बहाली का काम किया जाता है, लेकिन जहाँ बारिश हो रही है वहाँ बहाली के कामों में मुश्किलात दरपेश हैं और जो लाइन स्टाफ है उनका काम मजीद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मजीद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ शाहिद से प्रत्यागा कर रहे थे। पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी का बड़ा इकदाम सामने आया है। पंजाब में मसीही तलबा के लिए नई दरसी कुतब की मंजूरी दे दी गई है। मसीही तालीम की कुतुब तालीमी सेशन 2026-27 से नाफिज होंगी। जमात अव्वल से जमात नाहुम और 11वीं तक नई कुतुब मंजूर हैं। ज़्यादातर कुतुब एजुकेटिंग यूथ पब्लिकेशन की तैयार करदा हैं। जमात नाहुम की किताब महबूब सन्स पब्लिशर्स की तैयार करदा है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे साथ जुनेद रियाज हैं। जी जुनेद। जी तलबा के ऐसी खबर है कि आम शहरों के लिए सिलेबस की जो है बकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई है और हर तलबा के लिए जो है मंजूरी दी गई है, जिसका फायदा ये होगा कि अब मसीही तलबा जो है वो भी मियारी तालीम जो है वो हासिल कर सकेंगे। और इस हवाले से जमात अव्वल से जमात 11वीं तक के नई किताबों की मंजूरी दी गई है। ज़्यादातर कुतब एजुकेटिंग यूथ पब्लिकेशन की तैयार करता है। जमात नाहम की किताब महबूब सन्स पब्लिशर की तैयार करता है। गैर मुस्लिम तलबा के लिए लहदा निसाब को फरोग देने का फैसला किया गया। मंजूर शुदा कुतब के कॉपी राइट्स भी खरीदे जाएंगे। इस हवाले से फैक्ट ऑफ काम का कहना है कि तालीमी सलाहत के तहत निसाब में बेहतरी का अमल जारी है। जी अच्छा जुनेद, दूसरी जानिब हमें बताइएगा, फेज 2 में भर्ती 12,000 स्कूल टीचर इंटर्न्स तनख्वाहों से महरूम है, क्या वजूहात हैं? जी फेज 2 में जो भर्ती किए गए थे स्कूल टीचर रिटर्न जिनकी तादाद 12,000 से भी ज्यादा है, उनको 24 फरवरी को जो है वो रखा गया था। हालांकि इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 1 दिसंबर से शुरू होना था। 3 माह बाद भी कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है, तो 1 माह की तनख्वाहें जो हैं इन 12,000 स्कूल टीचर रिटर्न्स को नहीं दी जा सकी। और इस पर महकमा स्कूल एजुकेशन के नाहली कहा जाए तो ये गलत ना होगा। और अभी तक जो है अगर लाहौर की बात की जाए तो 424 आर्जी असातिज़ा रखे गए थे, लेकिन अभी तक उनको 1 माह गुजरने के बाद तनख्वाहें नहीं मिलती थी। इस वाले से एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का कहना है कि हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिसके बाद इनको तनख्वाहें 1 से 2 रोज में जारी कर दी जाएंगी। जी तनख्वाहें 1 से 2 रोज में जारी कर दी जाएंगी। जुनेद रियाज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बात करें SECP के बड़े फैसले की। पंजाब और बलोचिस्तान के लिए मजीद पेंशन फंड्स की मंजूरी दी गई है। पंजाब के लिए 1, बलोचिस्तान के लिए 8 नए पेंशन फंड की मंजूरी दे दी गई है। नए फंड्स के बाद पंजाब में 25, बलूचिस्तान में पेंशन फंड्स की तादाद 15 हो गई है। बलूचिस्तान के पेंशन फंड का इंतजाम मारूफ ईस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के सपोर्ट किया गया है। JS इन्वेस्टमेंट्स, अल्फला ईस्ट मैनेजमेंट, नेशनल बैंक फंड मैनेजमेंट और UBL फंड मैनेजर्स शामिल हैं। पंजाब के नए पेंशन फंड का इंतजाम AWT इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड को सौंप दिया गया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे, कलीम अख्तर ने हमें ज्वाइन किया है। जी कलीम। जी बिल्कुल, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पेंशन इस्लाहात के तहत बलोचिस्तान के लिए 8 और पंजाब के लिए एक नए पेंशन फंड की मंजूरी दे दी है। नए फंड के बाद बलोचिस्तान में पेंशन फंड की जो तादाद है वो 15 जबकि पंजाब में 25 हो जाएगी। बलोचिस्तान के पेंशन फंड का इंतजाम JS इन्वेस्टमेंट, अल्फला ईस्ट मैनेजमेंट, नेशनल बैंक फंड मैनेजमेंट और इसके अलावा UBL फंड मैनेजर्स के सपोर्ट किया गया, जबकि जो पंजाब के फंड का इंतजाम है वो AWT जो इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है उसको दिया गया है। SECP के मुताबिक बलोचिस्तान में कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम का जो बाकायदा नफाज है वो शुरू कर
दिया गया है, जबकि रवायती पेंशन निज़ाम से नए निज़ाम की जानिब बतदरीज जो मुंतकिली है वो भी की जा रही है, जबकि हुकाम की जानिब से बताया गया है कि इन इस्लाहात का मकसद पेंशन निज़ाम को मज़ीद पायदार बनाना है, हुकूमती माली बोझ कम करना और इसके अलावा जो मुलाजमीन की अपनी रिटायरमेंट फंड है उस पर ज़्यादा कंट्रोल देना है, जबकि पेशेवराना ईस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के जरिए फंड का जो शफाफ इंतजाम है वो यकीनी बनाया जाएगा, जबकि ये इकदाम माली नज़्म व ज़ब्त और इसके अलावा जो तवील मुद्दती इस्तेकाम है उसको फ़रोग़ भी दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम।